Academic Director Dr. A.T. Mishra, Vice Principals, esteemed guests, our trainer guru, Sri B.K. Saktiraj ji, all the members of ODM family and beloved children. A warm welcome to this transformative session on Supermind, Superfuture. Let our minds be ignited and our potential unlocked as we embark on this journey of growth and learning. Dear children, we have Sri B.K. Saktiraj ji this evening with us. He is an esteemed international mind trainer who brings with him a wealth of knowledge and experience in unlocking the potential of human mind. With his expertise, he has empowered countless individuals to harness their inner strengths and capabilities, paving the way for them to achieve remarkable success in various aspects of their lives. His profound insights and innovative techniques have garnered admiration worldwide, making him a sought-after mentor in the realm of personal and professional development. This evening, we have the privilege of learning from his wisdom and guidance as we delve into the realms of mind training and self-discovery. Let us embrace this opportunity with open hearts and minds, ready to embark on a journey of transformation under the guidance of our trainer guru, Sri B.K. Saktiraj ji. Can we have a huge round of applause for our esteemed guest? May I now take the opportunity to invite onto the stage our beloved chairman, Dr. S. Minaketan, for a welcome address. Sir, please. My esteemed guest of the evening, B.K. Saktiraj, and other sisters and brothers present over here, my beloved children, I welcome you all for a special session that empowerment of mind. That every man, it is very important for all of you because the mind is the most important phenomenon of every human. How to manage it? We all are managed by mind. We are not able to manage the mind. So we are the slaves of the mind. We are not the master of the mind. The moment you will be the master of the mind, then you are a Superman. So it is very difficult to manage the mind. As we know how to manage the time. Time management is very easy, but mind management is very difficult. Today we'll listen from our guest that how to control your mind. Because there is saying, मन का जीत जीत है, मन का हार हार है, वही तो भगवान का गीत है, मन का हार हार है और मन का जीत जीत है. Thank you. Now, the tradition of ODM family. May I request our chairman sir and director ma'am for your kind presence on the stage, and our guest, our trainer guru, Sri B.K. Saktiraj ji, please give us a chance to express our love and the love on behalf of all the students of ODM family. May I request our chairman sir and director ma'am onto the stage, and Ipshita ma'am for the preparation of the felicitation. Sir, please, ma'am, please.
to grab the opportunity to hear from the master trainer. Sir, welcome to ODM family. All yours. आज मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे रिस्पेक्टेड सर आपको मिले हुए हैं जो खुद ही एक मोटिवेटर हैं और खुद ही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप सब। मुझे हमारे रिस्पेक्टेड सिस्टर ने बताया कि बच्चों से मिलना है। मुझे बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और इतने सारे स्टूडेंट्स आज मेरे सामने हैं तो मुझे उनके सामने बोलने में बहुत जबरदस्त एक परमात्मा की तरफ से ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं यूथ को हिंदी में कहते हैं युवा। क्या कहते हैं? युवा का उल्टा होता है वायु। क्या होता है? वायु यदि सही डायरेक्शन पर चले तो वो एक एनर्जी का काम करती है और गलत डायरेक्शन पर चले तो बवंडर का काम करती है। यस और नो? तो हमें कौन से डायरेक्शन पर चलना है? राइट डायरेक्शन पर चलना है। कहते हैं जो दिखाई नहीं देता उसे भूत कहते हैं, जो तोड़ने से भी न टूटे उसे मजबूत कहते हैं और जो बनाए देश को उज्जवल उसे यूथ कहते हैं। तो आप सब यूथ हैं, पर कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे। हनुमान जी के पास अनलिमिटेड पावर थी, बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, ट्रेमेंडस पावर थी, चमत्कारिक शक्तियां थी, वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। किन्होंने याद दिलाया था? जामवंत जी ने। तो आप सभी हनुमान जी के समान शक्तिशाली हैं, ऊर्जावान हैं, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, पर अपनी पासवर्ड को आप अपनी पावर्स के पासवर्ड को भूल गए हैं। इसलिए सर ने मुझे आज बुलाया जामवंत के रूप में यहाँ पर आपकी शक्ति को रिकॉल करने के लिए। तो मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा। राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? बहुत अच्छा, ग्रेट। तो आज आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ने वाली है, माइंड पावर भी बढ़ने वाला है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने वाली है, बहुत कुछ आपका ऑटोमेटिकली आप फील करेंगे। माइंड कैसे काम करता है? सबसे पहली बात, माइंड के बारे में सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि माइंड को मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। यदि हम अपने मन को कंट्रोल कर लें, यदि मन को हम अपना मैनेज कर लें, मन को दोस्त बना लें, ठीक है, मन हमारी बात माने तो माइंड हमारा बेस्ट फ्रेंड, और मन की हम बात माने तो सबसे बड़े जितने भी जेल भरे पड़े हुए हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, मन की बात मानने के कारण हो रहे हैं। मैं अक्सर कैदियों को भी ट्रेनिंग देता हूँ, जेल में जाता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ, बोलते हैं सर कुछ नहीं, मेरे माइंड में एक ख्याल आया, एक फिल्म देखा था धूम धूम, मैंने भी धूम धूम किया, अब पुलिस वाले मुझे रोज धूम धूम करते 18 साल से पीट रहे। कारण क्या था? एक वीडियो देखा, उसका प्रभाव पड़ा, उसको रियल लाइफ में करने की कोशिश किया। ठीक है, वो एक्चुअली एक हीरो नहीं है, वो सिर्फ एक एक्टर है, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक नौटंकी, वो नाटक कर रहे हैं, पर उसको हमने जब रियल लाइफ में किया जो नहीं करना चाहिए था। और कई हीरोज, मैं अक्सर बॉलीवुड के भी कई स्टार को ट्रेनिंग दे चुका हूं और आईपीएल की टीम को भी कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया है मैंने। तो उनसे जब मैं मिलता हूं तो उनको मैं पूछता हूं कि भाई आप तो हीरो, आपका तो बहुत जबरदस्त क्रेज है। वो कहते हैं सर हम सिर्फ लाइट कैमरा एक्शन तक हीरो हैं, उसके बाद तो हम भी आपके जैसे इंसान हैं, हमें भी स्ट्रेस होता है, हमें भी तनाव होता है। तो हीरो असली कौन है? हमारे हीरो असली जो हीरो है, रियल में बताऊं, असली हीरो हमारे मम्मी पापा है, असली हीरो हमारे आर्मी के जवान हैं, असली हीरो हमारे टीचर हैं। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें। कहते हैं ऊपर में जिसका अंत नहीं होता उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं होता उसे मां कहते हैं। और मां बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में। मां की पावर को, मां के प्यार को फील करना है ना, तो एक ज्यादा नहीं, 9 किलो का पत्थर जो है, 9 किलो का पत्थर यहाँ गले में लटका कर 2 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ 2 मिनट ना, एक बार पेट में पकड़ा के 9 किलो का पत्थर, और माँ कितने दिनों तक बच्चे को अपनी कोख में रखती, 9 महीने तक रखती, राइट? तो उसका अंत, उसके प्यार का अंत नहीं, अनकंडीशनल लव है। तो कभी भी माँ का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। मैं अपने प्रोग्राम में, मेरे 3-3 दिन के वर्कशॉप होते हैं, तो जो बच्चे इतने, कई बहुत बच्चे खतरनाक होते हैं, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ भी फॉलो नहीं करते उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, पर जब मेरा वर्कशॉप होता है उसके बाद में आते हैं
और अपनी उनके मम्मी पापा भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम होते हैं, तो दोनों मम्मी और उसकी बच्ची या जो वॉइस है उसके पिता स्टेज पर आते हैं, और जिन्होंने आपस में बहुत दिन से उनके संबंध आपस में खराब थे, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों स्टेज में आकर गले मिलते हैं, रोते हैं कि हमने आज के बाद ऐसा नहीं करना है। तो ये हीलिंग आपकी आज से शुरू होने वाली है। आज देखा जाए पूरी दुनिया एम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड के ऊपर डिपेंड है। कौन कौन से एम से शुरू होने वाले पूरी दुनिया डिपेंड है? जिसके ऊपर? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मोबाइल, और कौन कौन सा है? मीडिया, मार्केट, और बताइए एम से क्या क्या डिपेंडेंसी हो सकती है? मोबाइल हो गया, मॉनिटर हो गया, मोदी जी, और बहुत सारे एम है। पर इस दुनिया के तमाम एम किसके ऊपर जुड़े हैं? माइंड के ऊपर जुड़े। मैन के लिए कॉलेज, मनी के लिए कॉलेज, मशीन के लिए कॉलेज, पर माइंड के लिए कोई कॉलेज नहीं है। बट यू आर लकी, यू आर वेरी लकी कि आज जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू मैं आया हूं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ पर माइंड को एम्पावरमेंट करने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर वो शिक्षा दी जाती है जो मैं आप सुनना, अभी ध्यान से सुनना। कहते हैं देवताओं की एक बार मीटिंग हुई, और मीटिंग में सेट किया गया कि मनुष्य को पता चल जाए कि उसके पास अनलिमिटेड पावर है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। कुछ देवता कहते हैं मनुष्य की सारी पावर को आकाश में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं पाताल में छुपा देते हैं, कुछ कहते हैं गुफा में छुपा देते हैं। पर एक इंटेलिजेंट देवता जिसका IQ, EQ, SQ, HQ बहुत स्ट्रांग था, बोले मनुष्य आकाश में भी जाएगा, पाताल में भी जाएगा, गुफा में भी जाएगा, पर खुद के अंदर नहीं जाएगा। तो भगवान ने सारी पावर कहां छुपाई है? हमारे अंदर। भागते कहां हैं? सारी पावर आपके अंदर है, अनलिमिटेड पावर आपके अंदर है। एक बार मैं आपको फील करवाता हूं। सपोज आप बहुत ज्यादा थके हुए, फील करिए आप बहुत थके हुए, 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत थके हुए, और अचानक आपको पता है कि भुवनेश्वर में एक शेर का हमला हो रहा है बार बार, ठीक है, और आप मेरी क्लास सुन रहे हैं और पीछे से शेर ने एक दहाड़ मारी और धीरे धीरे वो आपकी तरफ आ रहा, तो क्या करेंगे आप? ऐसा भागेंगे जैसे पीटी उषा भी नहीं भागती होगी। एनर्जी कहां से आई? एनर्जी आपके अंदर है, एनर्जी आपके अंदर है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। चलो मैं आपका कुछ टेस्ट लेता हूं, मेमोरी सुपर माइंड की बात होती है, तो मैं आपका कुछ टेस्ट लेता हूं करंट मेमोरी के ऊपर में, राइट? तो आपकी मेमोरी भी बढ़ाना है, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगा, शब्द देता हूं, आप उसे रिमेंबर करके रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? ठीक है, सभी तैयार है? चलिए, फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, सॉर्ड, अमिताभ बच्चन, गोल्डन सोफा, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, की। सीक्वेंस में बताइए 14 वर्ड्स। कौन बता सकता है? बताइए, फटाफट बताइए। बाहुबली को किसने मारा? बहुत अच्छी मेमोरी। अभी मेमोरी आपकी कटप्पा हो गई है भाई, ठीक है? अभी मेमोरी आपकी कटप्पा, अभी सब भूल गए। क्या आपके साथ ऐसा होता है? पढ़ाई तो खूब करते हैं आप, वो पढ़ाई एग्जाम के पहले भी याद रहती है, ध्यान से सुनना, और एग्जाम के बाद भी याद रहती है, पर एग्जाम में याद नहीं रहती, सब भूल जाते हैं। किस किस का याद होता है? हाथ उठाओ सर, देखिए पीछे। Every student are facing this type of problem. Okay, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चन, $1 million क्वेश्चन। गरम तवा है, तवा गरम है, पानी की 5 बूंदे डालेंगे तो आवाज कैसे आएगी? बस ऐसे ही आवाज आपके अंदर से आती है जब आप अपने माइंड के तवे को गर्म करते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, और फिर पढ़ाई करते हैं, तो जो भी डालते हैं तो आवाज अंदर से ऐसी आती है और सब भूल जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, माइंड के तवे को ठंडा करना पड़ेगा। यस और नो? तवा को ठंडा करना पड़ेगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे माइंड में इफेक्ट होता है, जैसा भी हम सोचते हैं वैसा हम कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है? दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ लेना है, रगड़िए सभी, दोनों हाथों को अच्छे से रगड़िए सभी स्टूडेंट। और यदि आप मान लें कि आपके दोनों हाथों में चुंबक है तो क्या होगा? फील करते हैं। चलिए दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। सबसे पहले आपकी फिजियोलॉजी, आपका बॉडी का जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे माइंड में असर पड़ेगा। अब ऐसे करके डाउन होकर रहेंगे तो वैसे ही असर पड़ेगा। जितनी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी डेटा पूरा अंदर जाएगा,
3 ट्रिलियन डेटा को 1 सेकंड में प्रोसेस करता है हमारा माइंड, इतना जबरदस्त है, राइट? सो चलिए, रब द बोथ हैंड, अच्छे से रगड़िए और सामने करिए, सामने, हाथ सामने, और आप आंखों को बंद कर ले, फील करें दोनों हाथों में मैग्नेट लगा है, दोनों हाथों में मैग्नेट लगा है, अपोजिट पोल पर सेट है, नॉर्थ साउथ पोल पर सेट है। जब अपोजिट पोल पर सेट होता है तो एक दूसरे से आकर्षित होता है, राइट? चलिए फिर से रगड़िए, अच्छे से रगड़िए, फील करिए, सामने करें हाथ, हाथ सामने, फील करिए, दोनों पोल अपोजिट, दोनों हाथों में अपोजिट पोल पर सेट है मैग्नेट, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, फील करेंगे, फील करें, हाथ सामने करके फील करें, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, दोनों हाथों में मैग्नेट लगी हुई है। जब अपोजिट पोल पर मैग्नेट सेट होती है तो अपने आप हाथ पास आ रहे हैं, और पास और पास और पास और पास और पास और पास और पास, अपने आप हाथ पास आ रहे हैं। किस किस को फील हुआ दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन हो रहे हैं? एक्चुअली मैं बताऊं, जिसके पास माइंड होगा उसी को फील होगा, सबको नहीं होता है। फिर से उठाइए, किस किस को फील हुआ? अभी जो ही नहीं उठाया था, सर मुझे भी हुआ, मेरे पास भी माइंड है। बहुत अच्छा, ओके। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में बताता हूँ, एक कोई भी स्टूडेंट आ जाइए, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करेंगे। आइए ब्रदर, आइए, जिसको आइए भाई, ताली बजाइए इनके लिए। स्टेज में आने में कभी भी चांस मिले कभी मत चूकना, राइट? क्योंकि जैसी आप कमांड देंगे वैसा हो जाएगा। अभी आपका नाम? आर्यन जी, बहुत अच्छा। अब आर्यन जी को एक कमांड हम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल, सभी लोग। सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है और मैं चिराग को रगड़ता हूं, यहां पर एक जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करेगा? जिन यदि आ जाए, अलादीन का चिराग देखा ना आपने? जिन यदि आ जाए तो कौन सा क्वेश्चन करेगा? क्या हुक्म मेरे? ओके, तो आप अभी जिद का रोल करेंगे, ठीक है? मैं आपको जो भी कहूंगा तो आप क्या कहेंगे? जो हुक्म मेरे आका। मैं कुछ भी कहूं आप क्या कहेंगे? जो हुक्म मेरे आका। मैं आपके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है? ओके सर। चलिए, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं उन सब के नंबर्स बिल्कुल 99% कर दो, कर दो। यस सर। क्या बोलोगे? जो हुक्म मेरे आका। बस पूरी शिद्दत के साथ बोलिए, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। बहुत अच्छा। सबको 1-1 करोड़ रुपए फीस बन के 1-1 करोड़ रुपए तो गिफ्ट दे दो, जो हुक्म मेरे आका। इनके घर में जो भी थोड़ा बहुत मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता होगा सब सेट कर दो, सब शांति हो जाए, जो हुक्म मेरे आका। इन सबको फॉरेन टूर पर भेज दो, जो हुक्म मेरे आका, ठीक है? एक इनको जो सेलिब्रिटी पसंद है उनसे मिलवा दो एक दिन के लिए, जो हुक्म मेरे आका। सबसे ज्यादा उसी के लिए खुश हो रहे हैं। ओके, जो मेडिटेशन करता है उनको बहुत एनर्जी दे दो, बहुत ज्यादा पैसे कमाल, बहुत इनको अवार्ड दे दो जो मेडिटेशन करते हैं, जो हुक्म मेरे आका। देखो, जिनके पास एक ही कमांड है, अब मैं दूसरी कमांड दे रहा हूँ, जो मेडिटेशन नहीं करता उसको पनिशमेंट दे दो, जो हुक्म मेरे आका। जिनके पास एक ही कमांड है, जो हुक्म मेरे आका, जो भी आप कहेंगे जिन मान लेगा। जिन कौन है? हमारा अंदर वाला माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें 90%, सपोज अभी ये आर्यन जिन है, 90% पावर इनके पास है, और मैं हूं अलादीन, मेरे पास 10% पावर है, राइट? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 10% पावर है पर मैं मालिक हूं, और इनके पास 90% पावर है पर इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बस इनके पास जो भी दिया मैंने कमांड उसको वो पूरा करते हैं, चाहे वो राइट हो चाहे रॉन्ग हो, ठीक है? आपके लाइफ में भी आपने बोला मैं कमजोर हूं पढ़ाई में, अंदर वाला जिन बोलेगा, जो हुक्म मेरे आका, जो हुक्म मेरे आका। आप कमजोर ही रहेंगे। आपकी मजाल है कोई आपको आगे टॉपर ला दे, मजाल है आप आगे बढ़ जाएं, आप कमजोर ही रहेंगे सदा। कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप? मैं बहुत पीछे हूं इस सब्जेक्ट में, जो हुक्म मेरे आका। सदा पीछे रहेंगे, आपके पूरे खानदान पीछे था तो आप कैसे आगे हो सकते हैं? जैसी कमांड देंगे वैसा ही होगा। हाथ ऐसा करिए, हाथ ऐसा करो। अब मैं जब मैं पॉजिटिव बोलूंगा तो आप टच करके बोलेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? जब नेगेटिव बोलूंगा तो नहीं बोलना, पहले से टच मत करो, राइट? ऊपर करो हाथ ऐसा। जब मैं कुछ पॉजिटिव कहूंगा तो आप टच करके बोलना तथास्तु। क्या बोलेंगे? फिर से जोर से बोलिए। जब नेगेटिव बोलूंगा तो टच नहीं करना, राइट? चलिए,
I am powerful. I am powerful. मैं ऊर्जावान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं महान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरा भविष्य उज्जवल है, घर में महाभारत ही महाभारत है। मैं इस साल टॉप करूंगा, पीछे से टॉप करूंगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मेरे सहयोगी हैं, ओडीएम स्कूल में सभी टीचर बहुत अच्छे हैं, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। जैसे ही सोचा जो हुक्म मेरे आका, टीचर आपकी फिर अच्छे से रैगिंग लेंगे, अच्छे से पकड़ के आपकी होने वाली है आपकी, ठीक है, पनिशमेंट। जो कमांड दोगे वही होगा। क्या कमांड देना, पॉजिटिव नेगेटिव? चलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा भविष्य उज्जवल है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मेरे साथ भगवान है, मेरा माइंड पावर बहुत अच्छा है, मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। ओके, बहुत जबरदस्त, ग्रेट, जोरदार क्लैपिंग करिए अपने। अभी हम एक क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस करने वाले हैं जिसको कहते हैं मेंटल डिटॉक्स, और अंदर के ब्लॉकेज को रिमूव करने। दोनों स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जीनियस होता है, हर स्टूडेंट एंजल होता है, हर स्टूडेंट कमाल का होता है, पर प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तब से 16 साल की उम्र तक इतने नेगेटिव इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं कि 36 घंटे की डीवीडी भर जाएगी। क्या क्या बोला जाता है बच्चों को? तू ढब्बू है, तू गधा है, बाजू वाले का लड़का देख कितना होशियार है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम टॉप नहीं कर सकते, तुम्हारे खानदान में किसी ने टॉप किया है? अब आपने उस सेंटेंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर लिया, राइट? मम्मी पापा भी कभी कभी कमांड देते हैं बच्चों को, तू तो गधा है, ठीक है। अब मम्मी पापा को बच्चा बहुत मानता है दिल से, अंदर से मम्मी पापा तो सही में मैं गधा ही हूँ। जो हुक्म ले लिया उसने, अब जो हुक्म ले लिया, फिर क्या हुआ? जब भी वो पढ़ाई करेगा तो तुरंत उसका माइंड ब्लॉक करेगा कि मैं तो गधा हूं, राइट? तो आज के बाद क्या करना है? आज के बाद क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को बताऊं तो उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद ये प्रोसेस को अपनाना। एक बार क्या हुआ, एक मेंढक की रेस हुई, पूरे इंडिया से बहुत सारे मेंढक आए, और उसमें क्या था, एक टॉप शिखर था, वहां पर पहुंचना था। मेंढक की रेस पे सेट किया गया, जो टॉप पे जाएगा उसको एक गोल्डन कप मिलेगा। रेस शुरू होती है, जैसे जैसे मेंढक बढ़ना शुरू करते हैं तो आजू बाजू में जो दर्शक मेंढक होते हैं वो कमेंट करते हैं, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे चोटी है, आगे खाई है, आगे माइनस टेम्परेचर है, आगे बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ मेंढक रुकते हैं, कुछ मेंढक बढ़ते जाते हैं, कुछ मेंढक रुकते हैं, कुछ मेंढक बढ़ते जाते हैं, पर अंत में एक युवा मेंढक उस सफलता के शिखर में पहुंचता है। उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपसे ज्यादा अनुभवी, आपसे ज्यादा शक्तिशाली, आपसे ज्यादा ऊर्जावान मेंढक थे, आपने उस सफलता के शिखर में कैसे पहुंचे? तो वो मेंढक क्या था? वो मेंढक बहरा था, उसने सुना ही नहीं कुछ कि आगे तूफान है, आगे खाई है, आगे ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं सुना, सिर्फ उसने फोकस रखा, ठीक है, मुझे आगे जाना है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा बनना पड़ेगा। किससे? नेगेटिविटी से। यस और नो? अच्छा, आपके जीवन का क्या क्या लक्ष्य बताइए, क्या क्या लक्ष्य है आपका? क्या लक्ष्य है आपका? ठीक है सर, एक माइक ले लेंगे, फटाफट 2-4 स्टूडेंट से पूछेंगे, एक माइक, कोई भी टीचर है एक माइक ले लेंगे, यहाँ से घर से भी पूछे अपने अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हैं? व्हाट इज योर एक्चुअल एम ऑब्जेक्ट, क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, चलिए 2-4 स्टूडेंट से पीछे से आगे से सब पूछे, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी पूछ सकते हैं, सभी तैयार रहिए, कहीं से भी सर पूछेंगे, राइट? किसी को भी खड़ा करके पूछेंगे आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहते हैं आप? खड़े होकर आंसर देंगे, तैयार रहना पहले से। एक अच्छा इंसान। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी लाइन मत लगा देना अच्छे इंसान की, जैसे उन्होंने बोला है तो बाकी वाले भी लाइन अच्छा इंसान वाले, अपना अपना अलग अलग लक्ष्य हो सकता है। अच्छा इंसान तो सबसे पहले बनना, फिर बाद में सब कुछ बनना है। सर विल बी डॉक्टर फर्स्ट। ओके गुड, ऐसा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी बनना चाहते हो सब बन सकते हो आप। एंटरप्रेन्योर। सर यूपीएससी करना। ग्रेट, यूपीएससी करना बस है कि बनना क्या है?
आईएएस बताओ ना, नहीं तो यूपीएससी ही करते रह जाओगे जिंदगी भर। कमांड जो दोगे ना, ग्राफिक बहुत डिजाइनर। खतरनाक। हाँ? ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनर बनना छोटा मोटा या बहुत बड़ा वाला? कहाँ? बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज के साथ, राइट? ओके, गुड। सोच, देखो आप कुछ भी सोच सकते हो और कुछ भी बन सकते हो, तो क्यों जीएसटी क्यों लगा रहे हो अपनी लाइफ में? लोग टैक्स मत लगाओ, फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने लक्ष्य को यहां पर क्लियर रखा। अब मैं आपके लक्ष्य को, चलिए अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। करना क्या है, आपको देखना है कि आप एक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, और गाना भी गाना है, जिस गाने के साथ गाना है, और प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। और जब भी सर इसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब भी सारे स्टूडेंट को दे दीजिएगा, जब भी कभी डिमोटिवेट हो तो इसको देख लेना। सभी रीड के सीधी कमांडो, यू आर द कमांडो, आप कमांडो है, सभी फील करें आप इंडियन, भारत के लिए लड़ने वाले कमांडो हैं, पूरे विश्व के सामने एग्जाम्पल है, ऐसा फील करें अपने आप। रीड के सीधी राइट हैंड कस लीजिए। आपको करना क्या है, एक बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी है, वहां पर इंडिया का नेशनल फ्लैग गाड़ना है, अपने मम्मी पापा को प्राउड महसूस कराना है, आपके टीचर को, आपके चेयरमैन को, आपके पूरे स्टाफ को, जितने भी आपके ओडीएम की फैमिली है, उन सबको प्राउड महसूस कराना है। तो आपको करना क्या है, एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर आपको इंडियन फ्लैग वहां पर लगाना है, और आपको पूरे देश का, अपने मम्मी पापा का, सबका नाम रोशन करना है। तो होगा क्या, आप यहां से ग्राउंड से जब उस पहाड़ी की चोटी पर जाएंगे, कई ऑब्स्टेकल आएंगे, कई लोग बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बुद्धू हैं, आप कमजोर हैं, आप वीक हैं, पर उन सब बातों की फिक्र किए बिना कैंसिल करना, उस सबको कैंसिल करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो एक गाना बजेगा, उसके साथ फीलिंग के साथ कि आप आर्मी में हैं और आपको उस लक्ष्य को पाना ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। कहते हैं लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, और सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, राइट। तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस लक्ष्य की ओर जाना है, और गाना भी गाते हुए उस लक्ष्य की ओर पहुंचना है। जब मैं कहूंगा 3, 2, 1 तो आप यस कमांड देंगे। जब उस चोटी पर पहुंच जाएंगे 5 बार यस कमांड देना है, ठीक है। आंखों को बंद कर लें, गहरी लंबी सांस। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। लाइफ में हम 2 बार जीतते हैं, लाइफ में हम 2 बार जीतते हैं, एक बार अपने माइंड में और एक बार रियल लाइफ में। माइंड में जीत लिया तो प्रैक्टिकल लाइफ में जीतना इजी है। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो? बोलिए, आई एम पावरफुल। पूरी एनर्जी के साथ, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। चलिए, रीड कैंडी सीधी, जर्नी में जाने के लिए तैयार, सफलता को चूमेंगे। 3, 2, 1 Once again, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 फील करें, आपने उस लक्ष्य को पा लिया है। यू आर द हीरो। अब आपके मम्मी पापा और आपको मेडल पहनाया जा रहा है, बुके दिए जा रहे हैं। उस खुशी को, उस प्राउड को, उस गर्व को महसूस करें। यू आर द हीरो, यू आर द टाइगर, और अपने अंदर के टाइगर को महसूस करें। आपके अंदर का टाइगर, आपके अंदर का लायन दहाड़ रहा है। You can, आप अपनी काबिलियत से सब कुछ कर सकते हैं। भगवान की शक्ति आपके साथ है, आप भगवान की भी संतान है, क्योंकि आप एक आत्मा है, परमात्मा की संतान। सारी दुनिया ने आपकी सफलता का लोहा, आपकी हिम्मत का लोहा मान लिया है, और सभी आपके लिए क्लैप कर रहे हैं। आप भी अपनी सफलता के लिए क्लैपिंग करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर कर ले, म्यूजिक के साथ इस सफलता के लिए क्लैपिंग करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर करें, सभी क्लैपिंग करेंगे म्यूजिक के साथ। हाथों को ऊपर ऊपर, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश के साथ, और तेजी के साथ, फीलिंग के साथ। हाथों को ऊपर करिए, ऊपर ऊपर करें हाथों को। 3, 2 आप सब कुछ कर सकते हैं, वो शक्ति, वो पावर आपके अंदर है। हाथ के साथ
सुनना चाहिए। और तेजी के साथ, कितनी तेजी से बजा सकते हैं आप? दोनों हाथों को ऊपर कर लेंगे। कितनी ताकत से बजा सकते हैं? हाथों को ऊपर करें, हाथों को ऊपर उठाएं, ऊपर। अब बजाएं, बस इतनी पावर है, इतनी। और करें, और ओके। आंख नहीं खोलेंगे, अपना राइट हैंड अपने सिर पर रख लें, राइट हैंड अपने सिर पर, आंखें नहीं खोलेंगे। फील करें, मन में कमांड देंगे, हजार भुजा वाला भगवान, पूरी दुनिया का भगवान मेरा पिता है। मैं एक शरीर नहीं हूं जिसमें एक आत्मा है, पर मैं एक आत्मा, एक एनर्जी हूं, इमॉर्टल हूं, जिसको कोई मार नहीं सकता। मैं सदा हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ऊर्जा हूं। आई एम एनर्जी। मैं एक एनर्जी हूं और मैं भगवान की संतान हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। मैं सदा निश्चिंत हूं, निर्विघ्न हूं, मैं चरित्रवान हूं, मैं महान हूं, मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, मेरा माइंड पावर बहुत अच्छा है, मेरे अंदर हिम्मत भरपूर है, साहस भरपूर है, भगवान की शक्ति मेरे साथ है, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है। कमांड देंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप फील करें, आप एक रूम में हैं, फील करेंगे आप एक रूम में हैं। रूम में एक फोटो फ्रेम की पिक्चर को देखें। फोटो फ्रेम की पिक्चर के नीचे देखेंगे एक विंडो है, विंडो से बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है, स्नेक के मुंह में सॉर्ड है, सॉर्ड के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे छुपे हुए, सोफे के ऊपर टाइगर बैठा है, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट है, सिर के ऊपर पॉट है, पॉट में 3 ट्यूबलाइट है, 3 ट्यूबलाइट के ऊपर 3 बर्ड है, बर्ड के मुंह में की है। फिर से देखें फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम के अंदर स्कूटर, स्कूटर के नीचे विंडो, विंडो से बटरफ्लाई आ रही है, बटरफ्लाई स्नेक का पीछा कर रही है, स्नेक के मुंह में सॉर्ड है, सॉर्ड के डर से अमिताभ बच्चन गोल्डन सोफे के नीचे, गोल्डन सोफे के ऊपर टाइगर, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट, सिर के ऊपर पॉट, पॉट में 3 ट्यूबलाइट, 3 ट्यूबलाइट के ऊपर 3 बर्ड, बर्ड के मुंह में की। बहुत अच्छा। अब मैं शब्द कहूंगा, उसके बाद के शब्द को आपको लाउडली रिपीट करना। फोटो फ्रेम के अंदर क्या है? जोर से बोलिए, पूरी ताकत से। स्कूटर के नीचे क्या है? विंडो से क्या आ रही है? किसका पीछा कर रही है? स्नेक के मुंह में क्या है? शॉर्ट के डर से कौन छुपा है? कहाँ छुपा है? गोल्डन सोफे के ऊपर कौन है? टाइगर के राइट हैंड में क्या है? सिर पर क्या है? पॉट में क्या रखा हुआ है? ओके, ट्यूबलाइट के ऊपर कौन है? वाइट के मुंह में क्या है? ओके गुड। राइट हैंड ऊपर करिए, पीठ में 10 बार थपथपाइए पीठ में, और दोनों हाथों को रगड़ ले, चेहरे पर लगाएं और अपने लिए जोरदार क्लैपिंग करें। बहुत अच्छे, शाबाश। ओके, तो आपने 14 वर्ड्स को फटाफट लर्न कर लिया, राइट? एक कमाल की शक्ति आपके अंदर है। तो आपको सुबह सुबह बहुत पावरफुल कमांड देनी है, बहुत पावरफुल शक्ति अपने अंदर देनी है, जो मैंने आज आपको बताया। तो आज अभी तो हमारा दूसरा सेशन भी है और अभी बच्चे भी उठ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन कर पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इस टेक्निक को अपनाएंगे। जो भी चीज होती है पहले हमारे माइंड में होती है और फिर रियल लाइफ में होती है, तो इसको हम प्रैक्टिकल में अपनाएंगे तो आपके जीवन में जरूर सफलता होगी। और मेडिटेशन रोज करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति। शक्तिराज के लिए ताली हो जाए। राइट, आर यू हैप्पी? जोर से, आर यू हैप्पी? ओके, क्या सीखा तुम? रुकेगा, झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, झुकेगा तो रुक जाएगा। वही सीखा ना? So that you will all be the master of your mind, don't be the slave of your mind. Okay, right? क्या होना चाहिए? Master of my mind. Never I the slave of my mind. आज का याद क्या है? वादा लेना है जो आज I will be the master of my mind. ये सब लोग? Because thirst comes from mind. Your mind determines your action. Your action determines your behavior. Your behavior determines your character. Your character determines your destiny. So that ultimately
If we are the winner of the mind, we will be the winner of our destiny. Yes or no? So, कभी अभी स्ट्रेस है, किसको स्ट्रेस है और स्ट्रेस रिलीज हो गया? अरे रिलीज हो गया? हो गया? ओके, वेरी गुड. सो सबका माइंड पावर में भर गया. सो एनर्जी को जितना भरना है भर लो. एनर्जी के लिए चीज नहीं, ओनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीज है, लेकिन जो माइंड का जो एनर्जी भरना है विदाउट चेस्ट में भर लो एंड इंजन का स्टार्ट करो. चलना है, रुकना नहीं. ओके राइट. थैंक यू that Saktiraj ji for your motivation, and really on behalf of our Rotary friends and our ODM Educational Foundation, I extend my heartiest gratitude to all the Brahma Kumari brothers and sisters, those who have really are dedicated for the society, for the upliftment of the greater human being. Thank you all. Thank you so much, sir. I once again extend my heartfelt thanks on behalf of ODM Educational Group and ODM family to all the invited guests and all the brothers and sisters from Brahma Kumari. We have another session just now, and I am equally excited. The impression that the first session has on me, I am equally excited to go and join the second session. May I request all the guests to please adorn your seats in the Emerald Hall. We will shortly have our second session, and may I request the wardens and mentors to lead the students to their rooms or guided classes if they have. Thank you so much.